Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had finished Unit 15, Pronouns of your English Grammar book. Now, students, today I'm going to start with Poem 4, Pollution, of your Wordsworth English Reader. So, all of you, please take out your English notebooks as well as your Wordsworth English Reader book and turn to page number 72. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 72, Poem 4, Pollution. Now, students, all of you have heard about pollution. Now, what is pollution, children? Pollution is making the land, air, soil, everything unsafe. Pollution leads to muddy landscapes. It poisons the soil and water bodies. It kills plants and animals, and humans are regularly harmed by pollution. And who causes pollution, children? Pollution is caused because of us. That means human beings. वो हम और आप है बेटा जो सारा एनवायरमेंट को डर्टी कर रहे हैं. We are not making the environment safe for living. Human beings फैक्ट्रीज लगाते हैं, है ना. उसमें से आपने देखा है इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी इन द पोएम दैट पॉइजनस गैसेस एमिटेड, है ना. पॉइजनस गैस निकल रही है. हम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और ह्यूमन वेस्ट जो है वाटर बॉडीज में मिक्स हो रहा है, विच मेक्स द वाटर बॉडीज कंटेमिनेटेड, नॉट फिट फॉर यूजिंग द वाटर, है ना. वी आर यूजिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स विच इज मेकिंग द सॉइल पॉइजनस. एंड उसमें से फिर जो भी बेटा क्रॉप्स होते हैं वो when we consume, the animals consumes, what happens? As a result, we suffer from various diseases. Fine. And जो pollution है इसके कारण बहुत सारी diseases, dangerous diseases like cancer, है ना, respiratory problem, है ना, बहुत सारी diseases भी इंसानों को हो रही है. And pollution is contamination of environment. Contamination मतलब गंदा कर देना, making the things unsafe for living, for human beings, plants, animals. We are using polybags, है ना. हम एक्सेस में polybags यूज करते हैं. हम trees कट कर रहे हैं, है ना. हम deforestation कर रहे हैं, है ना. We are killing the animals, we are killing the birds. और इस सब का result क्या हो रहा है? Increase in pollution. Fine. So this poem is composed by Sanchit Saluja. You must know that pollution is a matter of grave concern. Grave means very serious concern. Pollution is a very serious problem each one of us is facing, है ना. Especially for the people of earth. Not only the human beings but even the animals and plants, they are also facing the pollution. And ये pollution का जो कल्प्रिट है ये कौन है? ह्यूमन बींग्स. हमारी जो ग्रीड है ना, और हमारी ग्रीड के कारण पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना. अभी आपने देखा था जब लॉकडाउन पीरियड थोड़े दिन पहले स्टार्ट हो गया था तो न्यूज में आ रहा था कि एयर वगैरह एकदम क्लीन हो गई, पोल्यूशन फ्री, क्योंकि कोई भी जो व्हीकल्स थे उनको रोड पे नहीं मूव करना था. तो वो जो पॉइजनस गैस वगैरह जो रिलीज करते वो नहीं कर रहे थे. सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद थी. तो आपने नोटिस किया होगा वो 2-3 महीने जो पोल्यूशन था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया. बट जैसे ही वापस से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ एंड पीपल अगेन स्टार्टेड विद ऑल दी थिंग्स एंड अगेन द पोल्यूशन हैज increased. Now, pollution is a serious, very serious concern for people of the earth, है ना. और it is we human beings only who are responsible for the increase of pollution in the environment.
Now in the following poem, the poet warns about the increasing harmful effects of pollution and emphasizes on the necessity of being aware about pollution. बेटा इस पर्टिकुलर पोएम में जो पोएट है वो हमको पोल्यूशन के बारे में, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, है ना, जो सॉइल पे, एयर पे, हाँ, ह्यूमन बींग्स पे, है ना, हो रहे हैं, वो पोल्यूशन के बारे में बता रहा है. एंड एम्फेसाइजेस मतलब किसी भी चीज पे ज्यादा स्ट्रेस देना कि अब हम लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए एंड वी शुड टेक स्टेप्स टू रिड्यूस द पोल्यूशन. Fine. So students, first of all, I'm going to recite the poem. Please listen to me carefully. Pollution by Sanchit Saluja. Earthlings, wake up and take charge. I speak not to one alone, but to the world at large. The scorching heat of the sun is rather difficult to bear. It's all because of pollution that dear ozone layer has a tear. Poisonous gases are emitted and here you cut the trees. If we don't stop this, we shall not breathe with ease. So stop this destruction and start the repair. Let's make the earth green and not desolate and bare. Now students, I would like to explain the new words of the poem, the new words and the phrases of the poem. So students, there are 6 new words in the poem. The first one is earthlings. Now what do you mean by earthling? Earthling means people living on the earth. Human beings who live on the earth are known as earthlings, है ना. We are, you, me, we are what? We are earthlings. जो इंसान अर्थ पे रहते हैं बेटा उनको अर्थलिंग्स कहते हैं, है ना. सो यू पीपल लिविंग ऑन द अर्थ आर नोन एज अर्थलिंग्स, है ना. जो अर्थ पे रहते हैं इंसान उनको क्या बोला जाता है? अर्थलिंग्स. देन द सेकेंड न्यू वर्ड इज स्कॉचिंग. स्कॉचिंग मीन्स बर्निंग, है ना. आप देखते हो समर सीजन में द हीट इज स्कॉचिंग. आप थोड़ा भी सन में निकलो समर सीजन में, है ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आपकी स्किन एकदम जल जाएगी. द सन इज सो हॉट, है ना. सो दैट बर्निंग सेंसेशन इज नोन एज स्कॉचिंग. स्कॉचिंग, बर्निंग. देन बेयर, BEAR, bear means to tolerate. The third new word is bear. bear करना मतलब सहना, बर्दाश्त करना, उसको क्या बोलते हैं? To tolerate. And we bear the heat, है ना. जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, वो हम बेयर कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स आर बेयरिंग बिकॉज वी आर द कल्प्रिट्स, है ना. हमारे कारण ही पोल्यूशन बढ़ रहा है. सो वी हैव टू बेयर, देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो बेयर, टू टॉलरेट. देन द फोर्थ न्यू वर्ड इज एमिटेड. एंड एमिटेड मीन्स प्रोड्यूस्ड, है ना. एमिटेड, प्रोड्यूस्ड. अब बेटा फैक्ट्रीज वगैरह में कई सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में कई सारी चीजें बनती हैं और जब वो बनती है मशीन्स चलती है. इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी ऑन पेज 72. आप देख रहे हो ना कि वो पाइप में से पॉइजनस गैस, आप देख रहे हो कि कितनी ब्लैक कलर की वो जो निकल रहा है धुआं जैसा, वो कितना हार्मफुल होगा एनवायरमेंट के लिए. और जब हम वो जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं, जब उसी हार्मफुल केमिकल वाले धुएं को लोग इनहेल करेंगे, है ना, हम सांस लेंगे तो वो धुआं हमारे अंदर जाएगा, है ना. तो जो निकलता है पाइप वगैरह में से कोई भी चीज बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एमिटेड, है ना. कि कोई भी एक प्रोडक्ट जब बनता है और वो प्रोडक्ट बनने के दौरान जब जो पाइप वगैरह में से जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज एमिटेड, प्रोड्यूस्ड, है ना. देन द फिफ्थ वर्ड इज डिसोलेट. डिसोलेट मीन्स बैरन और एम्प्टी, है ना. आपने देखा है कुछ जमीन पे कुछ भी आप लगाओ, किसान लोग उगाते हैं, फार्मर्स लगाते हैं, कुछ भी उगाते हैं तो वो बहुत अच्छी फसल और खेती होती है. बट कुछ जमीन इतनी खराब हो जाती है, सॉइल वो इतना पोल्यूटेड हो जाता है केमिकल्स वगैरह के, उसमें कुछ भी नहीं उगता. और जो उगता है वो जब कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम करेंगे तो दैट विल बी हार्मफुल. तो डिसोलेट मीन्स बैरन, बंजर, जिसको हम कहते हैं ना बंजर जमीन, जहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता, एम्प्टी.
So that is known as desolate. And the sixth word is bare. Bare मतलब खाली, without any trees. अगर हम ट्रीज को काट देंगे तो जमीन खाली हो जाएगी, बेर हो जाएगी. तो दैट इज विदाउट एनी ट्रीज. देन देर आर टू phrases also given, children. The first one is take charge. That means to take responsibility or control. To take charge मतलब किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको कंट्रोल करना कि नहीं अब हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे. दैट इज टेक चार्ज, है ना. देन द सेकेंड फ्रेज इज विथ ईज. विथ ईज मीन्स इजिली, आराम से, है ना. विथ ईज, इजिली, आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स, I have explained the 6 new words of the poem Pollution and the 2 phrases. Once again, I'll repeat it. The first new word is earthlings, and earthling means people living on the earth. Then the second word is scorching. Scorching means burning. Scorching, burning. Then the third word is bear. Bear means to tolerate. Bear, to tolerate. Then the fourth word is emitted, and emitted means produced. Emitted, produced. Then the fifth word is desolate, and desolate means barren or empty. Khali, banjar zameen. Desolate means barren or empty. And the sixth word is bare. Bare means without any trees. Now the phrases: take charge, to take responsibility or control. With ease, easily. Now students, once again I'm going to recite the poem and then I'm going to explain it to you. Poem for Pollution by Sanchit Saluja. Earthlings, wake up and take charge. I speak not to one alone, but to the whole world at large. The scorching heat of the sun is rather difficult to bear. It's all because of pollution. That dear ozone layer has a tear. Poisonous gases are emitted, and here you cut the trees. And if we don't stop this, we shall not breathe with ease. So stop this destruction and start the repair. Let's make the earth green and not desolate and bare. Fine, students? So students, now before I start explaining, students, you all have to write this poem Pollution in your English notebook. Fine? You please write poem for Pollution, then the name of the poet Sanchit Saluja. And students, in this poem there are 4 stanzas. Again I'll repeat beta कि ये stanza क्या होते हैं. बेटा, जैसे लेसन्स में पैराग्राफ्स होते हैं, पोयम में उनको स्टेंजास बोलते हैं, है ना. देर आर 4 स्टेंजास. द फर्स्ट स्टेंजा, द सेकेंड स्टेंजा, द थर्ड स्टेंजा एंड द फोर्थ स्टेंजा. लेसन में जो पैराग्राफ हम बोलते हैं कि एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ. एंड पोयम में हम उसको पैराग्राफ नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? स्टेंजा. आई होप दिस इज क्लियर. So students, you need to keep in mind that you will write the first 4 lines, that is the first stanza, then you will leave 1 line, then you'll write the second stanza, then you leave 1 line, then you'll write the third stanza, then you leave 1 line. So after each stanza, you need to leave 1 line. और बेटा पैराग्राफ जैसे पोएम आपको नहीं लिखनी है. एक लाइन जहाँ खत्म हुई वहीं खत्म हो गई. फाइन. द नेक्स्ट लाइन यू विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम अ न्यू लाइन. फाइन. हर लाइन आपको एक न्यू लाइन से लिखनी है. सो यू शुड लर्न हाउ टू राइट द पोएम. सो ऑल ऑफ यू विल राइट द पोएम. फाइन, इन योर इंग्लिश नोटबुक. फाइन. नाउ after you write the poem, children, you need to keep in mind that we will write the word meanings and the meaning of phrases also. Fine. So first of all, children, I explain the poem. Poem for Pollution. Earthlings, wake up and take charge.
I speak not to one, but to the world at large. The scorching heat of the sun is rather difficult to bear. It's all because of pollution. That dear ozone layer has a tear. Poisonous gases are emitted, and here you cut the trees. If we don't stop this, we shall not breathe with ease. So stop this destruction and start the repair. Let's make the earth green and not desolate and bare. Now, in the first stanza, the poet is saying that earthlings wake up. Now, what do you mean by earthlings? People living on the earth, है ना? Me, you, each one of us, है ना? कि जितने भी लोग इस अर्थ पे रहते हैं वो बहुत उन्होंने अनदेखी कर ली. दे हैव निग्लेक्टेड कि जो हो रहा है होने दो. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू वेक अप, है ना? हमें अब टाइम आ गया है कि हमें जाग जाना चाहिए. इट इज नॉट दैट कि नींद से जागना वाला, नॉट दैट वेकअप. दैट मीन्स कि नाउ अब आपको स्टेप्स उठाने हैं टू रिड्यूस द पोल्यूशन. ये उस जागने वाले को बोल रहे हैं, नींद में से जागने वाले को नहीं बोल रहे हैं. कीप इन माइंड. सो अर्थलिंग्स वेक अप एंड टेक चार्ज, है ना? कि अब हमारे अलर्ट होने का टाइम आ गया है ना? अब हमें वेकअप करना एंड वी नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? आई स्पीक नॉट टू वन अलोन बट टू द वर्ल्ड एट लार्ज. बट ये ऐसा नहीं है कि मैं और आप सोचेंगे कि नहीं हम पोल्यूशन नहीं करेंगे, हम एनवायरमेंट को गंदा नहीं करेंगे, है ना? ये एक दो लोगों से पोएट नहीं कह रहा है. पोएट जितने भी लोग हैं, ऑल दोस पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ, ये पोएम सबको एड्रेस कर रहा है दैट इट इज टाइम टू वेक अप. और हमको अब अलर्ट हो जाना है और हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. फाइन. पूरी वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. फाइन. दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा दैट वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस pollution. Now the second stanza. The scorching heat of the sun is rather difficult to bear. It's all because of pollution that dear ozone layer has a tear. है ना? अब क्या है बेटा, अब जब गर्मी होती है तो इतनी एक्सेस में गर्मी हो जाती है. आपने देखा होगा कि अभी भी अक्टूबर इज गोइंग टू एंड, बट इंडिया में भी कई स्टेट्स में बहुत पानी बरस रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, हैदराबाद में आपने देखा होगा, राजस्थान, जयपुर में देखा होगा कितनी एक्सेस में बारिश हुई कि वहां पे कितना नुकसान हुआ. वाई? ये क्लाइमेट का चेंज क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. जो पोल्यूशन है ये रिस्पॉन्सिबल है कि हम एनवायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, और एनवायरमेंट जब पोल्यूटेड हो रहा है तो उससे क्लाइमेट इफेक्ट हो रहा है. और अक्टूबर में तो कभी रेन्स आती ही नहीं थी, बट ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है. और वैसे ही बेटा सेकेंड स्टेंजा में दी स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन. अब बेटा इतनी तीखी, अगर आप सन में बाहर जाओ तो आप सन की जो हीट है वो ऐसा लगता है कि हम अगर सोचे कि थोड़ी देर सन में हम लोग बैठ जाएं या चल लें, तो अगर कभी समर सीजन में स्पेशली कभी हमको जाना पड़ता है बाहर, तो ऐसा लगता है कि जो सन की हीट है वो हमको बर्न कर देगी. इट इज सो हॉट, है ना? और पहले भी लोग यही लैंड थी, यही सन था, लोग भी यही थे, बट पहले पोल्यूशन नहीं था क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा वातावरण, एनवायरमेंट को गंदा नहीं किया था. बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. पीपल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दे आर मेकिंग न्यू थिंग्स. और जिससे अब जैसे पॉली बैग्स, बहुत पहले आज से लोग जो कपड़ों के बैग्स में सामान लेने मार्केट जाते थे, बट आजकल तो हम लोग कोई कपड़े का बैग यूज ही नहीं करते. हम लोग तो हर जगह वेर एवर वी परचेज थिंग, वी बाय वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, इसे भैया पॉलिथीन दे देना, पॉली बैग दे देना. बट दैट पॉलिथीन दैट इज सो हार्मफुल. वो क्या होता है, हम तो फेंक देते हैं, हमारे डस्टबिन से जाता है और वो डिपॉजिट होता रहता है, सॉइल में होता रहता है. फाइनली क्या होता है, वो सॉइल को पोल्यूटेड कर देता है. हाँ, वो सॉइल एकदम, उस पे पेड़ पौधे लगने, फसल नहीं लग सकती है, कुछ नहीं हो सकता है. तो ये किसके कारण हो रहा है? हमारे कारण. हम ट्रीज को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, ट्रीज को काट काट के, है ना? तो उससे क्या हो रहा है,
ट्रीज जो है आपको पता है ना ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, बट जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है ना, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इतनी ज़्यादा ये जो पोल्यूशन बढ़ने के कारण जो सन की जो रेज हैं जब हमको लगती हैं तो एकदम स्कॉचिंग होती है, ऐसा लगता है कि हमारी स्किन बिल्कुल जल जाएगी और इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू बेयर, और सन की हीट हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, है ना। पहले के लोग खूब सन में काम करते थे, दे यूज्ड टू प्ले, दे यूज्ड टू वॉक, दे यूज्ड टू वर्क एवरीथिंग, और वो लोग कितने स्ट्रांग रहते थे। और आजकल हम लोग तो थोड़ी देर में ही सन में जाने से हम लोग घबरा जाते हैं, है ना। एंड आपको सबको पता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, बट सन की जो अभी जो रेज हैं वो इतनी ज़्यादा बर्निंग लगती हैं कि कोई भी सन में नहीं बैठना चाहता है। आपको पता है जो आजकल डेडली वायरस चला है, कोरोना वायरस, है ना, जो लोग सन में एक्सपोज हैं बेटा उनको कम होता है, बट हम लोग आजकल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं सन की रेस, बिकॉज दे आर वेरी हॉट, और ऐसा लगता है कि वो हमारी स्किन को बर्न कर देंगी। सो द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन इज रादर डिफिकल्ट टू बेयर। और अब हम चाहें भी कि हम थोड़ी देर सन में चले जाएं, हमको कुछ काम है, वी स्टे आउटसाइड, सो वन कैन नॉट बेयर, ये बर्दाश्त ही कोई नहीं कर सकता है कि दे आर सो हॉट। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और ये जो इतनी हॉट हमको जो सन की रेज लगती हैं, वाई डू वी फील कि वो हमको बर्न कर देंगी? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, वो खाली पोल्यूशन के कारण। द डियर ओजोन लेयर हैज अ टीयर। और ये सन की जो रेज है ये हमको इतनी हॉट क्यों लगती हैं? क्योंकि आपको पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है ऊपर एक ओजोन लेयर होती है ना, और ओजोन लेयर में पोल्यूशन के कारण जो पॉइजनस गैस फैक्ट्रीज वगैरह से प्रोड्यूस हुए उससे हमारे ओजोन लेयर में एक टेयर मतलब एक छेद हो गया है ना। और छेद होने के कारण अब जो है जो यूएसबी रेज हैं, यूएसबी अल्ट्रा वायलेट रेज को बोलते हैं, वो डायरेक्ट उस छेद से बाहर आ रही। ओजोन लेयर थी तो वो प्रोटेक्ट करती थी, वो हार्मफुल रेज को ऊपर ही रोक लेती थी, लेकिन हमने जितना पोल्यूशन किया उससे ओजोन लेयर में एक टेयर हो गया, एक छेद हो गया है। और उस छेद के कारण अब जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट हमारी स्किन को लग रही, नहीं तो वो ओजोन लेयर क्या करती थी, शील्ड के जैसे रहती थी, ताकि कोई भी जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट हम तक न आए। बट हमारे पोल्यूशन फैलाने के कारण, इट इज नॉट मी, इट इज अ कंबाइंड एफर्ट कि ह्यूमन बीइंग्स ने इतना पोल्यूशन किया कि वो जो ओजोन लेयर जो एक हमारी कवच शील्ड के जैसा काम करती थी, वो उसमें छेद हो गया। और छेद को इंग्लिश में बोलते हैं ना टेयर, है ना। कभी कभी कपड़ों में छेद हो जाता तो देयर इज अ टेयर, TEAR को टेयर बोलते हैं। तो एक टेयर हो गया, एक छेद हो गया, और उससे क्या हो रहा है, जो वो हार्मफुल रेज हैं जिसको ओजोन लेयर रोकती थी अब वो डायरेक्ट हमको लग रही हैं, और वो हम बेयर नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट हमको लगेंगी तो वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, एंड इट इज मतलब वो इतनी नुकसानदायक है कि वो हमको नुकसान भी करेंगे और हम उनको बेयर भी नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि पोल्यूशन, एक्सेस पोल्यूशन के कारण ओजोन लेयर में एक टेयर हो गया, एक छेद हो गया। नाउ द थर्ड स्टेंजा, poisonous gases are emitted and here you cut the trees and if we don't stop this we shall not breathe with ease। अब क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर क्यों हुई? आपने देखा पिक्चर में, सबने पेज नंबर 72 में देखा था, फैक्ट्रीज से ये देखो पाइप से कितनी पॉइजनस गैस, है ना, आप देख रहे हो कितना ब्लैक कलर का धुआं, ग्रेश ब्लैकिश धुआं वो पूरे एयर में मिल रहा है। और उसी एयर को जब हम एनिमल्स, प्लांट्स सब क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो क्या होगा, हमको और हमने ट्रीज भी नहीं छोड़ी हैं, हमने ट्रीज को भी काट दिया है कि जो है ट्रीज जो है सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले, इनहेल कर ले और ऑक्सीजन एक्सहेल करे। बट हमने तो ट्रीज को भी काट दिया है, क्योंकि हमें तो फॉरेस्ट को खत्म करके वहां पे बिल्डिंग्स, मॉल्स, हाउसेस सब बनाना है ना, क्योंकि वी वांट टू अर्न मोर मनी। और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रीड ने ट्रीज को काट दिया है
हाँ, फैक्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज है ना, मॉल्स, बिल्डिंग्स, ये सब खड़ी कर दी हैं। उससे क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ट्रीज है नहीं कि वो जो भी हार्मफुल केमिकल्स है वो इनहेल करें और जो ऑक्सीजन है वो एक्सहेल करें। हमने तो ट्रीज भी काट दिए हैं। तो अब उसका नतीजा क्या हो रहा है कि अगर हम इसको नहीं रोकेंगे अभी, है ना, हम और ट्रीज नहीं प्लांट करेंगे, हम अब ट्रीज को काटना नहीं बंद करेंगे, तो क्या होगा कि अब हम थोड़े दिनों बाद हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। जो हम अभी इजीली ब्रीथ कर ले रहे हैं, हम आराम से सांस ले रहे हैं, है ना, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अर्थ पे से पूरी फ्रेश एयर खत्म हो जाएगी और हम सांस इजीली नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं हमारे लिए इनहेल करने के लिए। सो अभी भी टाइम है कि हमें ट्रीज को कट करना बंद करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन बंद करना चाहिए और हमें उसकी जगह नए ट्रीज को, नए प्लांट्स को हमें वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग, ताकि थोड़े साल बाद वो जो प्लांट्स है वो ट्रीज में कन्वर्ट हो जाए एंड अगेन एनवायरमेंट जो है धीरे 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 बैलेंस करें। अभी तो हमने पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया है। अभी चारों तरफ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हमने कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड। तो इट इज हाई टाइम कि हम अब फॉरेस्ट वगैरह काटना बंद करें। वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज एंड नहीं तो क्या होगा, हम जो भी आसानी से सांस ले रहे हैं आफ्टर सम टाइम वो भी नहीं हो पाएगा। देन दी last stanza. So stop this destruction and start the repair. Let's make the earth green and not desolate and bare. तो अब टाइम है कि हमको डिस्ट्रक्शन, अब डिस्ट्रक्शन जानते हो ना, किसी भी चीज को खत्म करने को, नष्ट करने को बेटा डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अब हमको ये जो डिस्ट्रक्शन, हम क्या डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम ट्रीज को काट रहे हैं, एनिमल्स को किल कर रहे हैं। हम जब ट्रीज काट रहे हैं तो एनिमल्स एंड बर्ड्स का हम क्या ले रहे हैं, उनका हैबिटेट छीन रहे हैं। उससे वो भी धीरे 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 अर्थ पे से क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो इट इज हाई टाइम कि हमको ये सब अब रोक देना चाहिए। वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। जो ट्रीज बचे हुए हैं, जो फॉरेस्ट बचे हुए हैं, उनको भी हमें उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। वी शुड एंश्योर कि जो बचा है उसको हम बचा रहे हैं और हम और कैसे प्लांट्स एंड ट्रीज लगाएं और कैसे हम फॉरेस्ट डेवलप करें, बिकॉज अब जगह ही नहीं बची है। हमने तो वहां पे फैक्ट्रीज, हाउसेज, इंडस्ट्रीज, मॉल्स सब बना डाले हैं। सो नाउ इट इज हाई टाइम फॉर अस टू स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट द रिपेयर। बेटा कोई भी चीज खराब हो जाती तो उसको हम रिपेयर करते हैं, उसको सुधारते हैं कि नहीं। तो इट इज हाई टाइम कि हम अर्थ का रिपेयर स्टार्ट करें। हम ये सारा पोल्यूशन धीरे 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 ग्रेजुअली इसको कम करें, है ना। वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, वी शुड सेव द एनवायरमेंट, वी शुड सेव द एनिमल्स, ट्रीज, बर्ड्स, हमें सेव करना है। एंड वी शुड एंश्योर कि हम पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन मीन्स नॉट ओनली लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये नॉइस पोल्यूशन, ये सारे तरह का पोल्यूशन को हम धीरे 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 कंट्रोल करें। नाउ इट इज हाई टाइम दैट वी शुड टेक चार्ज, वी शुड वेक अप एंड वी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक के लिए नहीं है, ये ऑल द ह्यूमन बींग्स का कंबाइंड एफर्ट होगा, तभी बेटा पोल्यूशन रुक पाएगा। लेट्स मेक द अर्थ ग्रीन। नो व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ ग्रीन, कि अभी हमने अर्थ को एकदम ग्रीनरी अर्थ की खत्म कर दी है बाय कटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। नाउ इट इज हाई टाइम कि हम जो बचे हुए फॉरेस्ट है उनको सेव करें और हम नए ट्रीज और प्लांट्स प्लांट करने की मतलब स्टार्ट कर दे, सो दैट कि थोड़े दिन बाद हमारा अर्थ वापस से आफ्टर मे बी सम इयर्स, जो अब जो जनरेशन आएगी उनको हम एटलीस्ट एक ग्रीन प्लानट, एक क्लीन प्लानट उनके लिए हम बनाएं एंड नॉट डिसोलेट एंड बेयर। और हम ऐसा प्लानट न बनाएं, हम अर्थ को ऐसा न छोड़ें कि जब हमने ट्रीज काट दिया और इतना पोल्यूशन बढ़ा दिया है कि अर्थ थोड़े दिन बाद जो लैंड है उसमें क्रॉप्स ही ना हो, है ना, जमीन जो है वो बंजर हो जाए, उसमें खेती ना हो सके, प्लांट्स ना हो और वो बंजर जमीन पड़ी रहेगी। तो बंजर जमीन किसी के भी काम की नहीं है ना। और जब क्रॉप्स नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या, है ना। सो इट इज हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस to wake up, take the responsibility, stop pollution.
हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं ना. वी कैन लाइक, हम अब सोचेंगे अरे हम अकेले क्या करेंगे. बेटा जैसे बूंद बूंद से है ना सी बनती है, एक एक वन ईच ड्रॉप ऑफ वाटर है ना कंट्रीब्यूट्स इन द मेकिंग ऑफ सी. सेम वे ईच वन ऑफ अस इफ वी स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग है ना, हम सबसे पहले क्या शुरुआत कर सकते हैं. हम सबसे पहले पॉली बैग्स बंद करें है ना. हम जब भी मार्केट जाएं या हमारी मम्मी जाए या हमारे घर से कोई भी जाए तो हम एक कपड़े का बैग ले लें है ना, या एनवायरमेंटल फ्री बैग्स मिलते हैं वो लें. पॉली बैग्स हम यूज करना बंद करें. फर्स्ट स्टेप हमारा ये. सेकेंड स्टेप, वी शुड इंश्योर दैट वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हम क्या करते हैं, अपना घर तो साफ करते हैं और सारा कचरा उठा के रोड पे डाल देते हैं. व्हाट आर वी डूइंग, वी आर स्प्रेडिंग द पोल्यूशन. सो वी शुड इंश्योर कि हमारा जो एक एक स्टेप है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस अर्थ को पोल्यूशन फ्री करने से. फाइन. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव understood this poem, children. Now all of you please write this poem in your English notebook. Now I'll be doing the rest of the exercises in my next video. That's all for today, children. Thank you, students. Have a good day ahead.